Okay. Hi, hello everyone. Just to revise, so I guess 10th lecture है ना 10th lecture है आज का. Okay. So we started with introduction, what is analysis, what is difference between data science, data analytics, right? Analyst who deals with past data, data science who deals with the future or prediction, forecasting, regression, these techniques. फिर data engineering, data analysis, data science, इसके बीच का difference. And then as a day to day work आप लोग क्या करोगे as an analyst to generate insights generate करना है and to provide a suitable action, right? So with this introduction, we started with the process, data understanding, data formatting, quick insights, right? In the quick insights, formatting भी हमने we understood why the column is important, how the column is important, right? Hopefully you are practicing और आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, okay? Then in quick insights we use some kind of a logic, conditional color code करना है, right? Duplicate find out करना है, indicate करना है which are more than, average से ज़्यादा क्या है, average से कम कौन है, top 10, bottom 10, top 10 percentage wise, मतलब in the percentage में top 10 कौन है. So these things were there. Then obviously filter and sort हमने यूज किया था. Then fourth step was to have a consolidation, मतलब हमें combine करना था data. So we used lookup functions such as VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, right? And then VLOOKUP के अलग अलग combinations, as in the regular VLOOKUP, then VLOOKUP with optional parameters, VLOOKUP with logical VLOOKUP, VLOOKUP on the same sheet, on different sheet, on different file. So इसके अलग अलग variations. Then XLOOKUP, then XLOOKUP उसका advantage, उसका disadvantage. Then XLOOKUP यूज करके हमने VLOOKUP का जो यूज केस था वो सॉल्व किया, and as well as HLOOKUP दोनों के यूज केसेस हमने सॉल्व किया था यूजिंग अ XLOOKUP, right? Good. Then pivot table, data summarization का पार्ट देख रहे थे. Insert, pivot table नहीं तो table design, summarize with pivot table, ये दो options थे, right? So once you do that, based on the condition or based on the, हमने यहाँ पे क्वेश्चन के बेसिस पे एनालिसिस किया था, बट आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, एज एन यू नीड टू थिंक कि क्या क्या इंसाइट्स हो सकते हैं इसमें. अप्रोचेस आप खुद क्वेश्चन बनाइए, ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड द इंसाइट, एज इन इस चार्ट को देख के, इस ग्राफ को देख के व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? ये एक अप्रोच हो सकता है. बिकॉज रियल वर्ल्ड में नोबडी विल गिव यू क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन वगैरह देगा आपको. मैक्स टू मैक्स दे विल गिव यू द बैकग्राउंड कि क्या बिजनेस है, डेटा में क्या है, कितने कॉलम्स है, यहाँ तक हो सकता है, बट नॉट मोर देन दैट. मे बी दैट इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहता है वहां पे, एज इन बिजनेस को क्या चाहिए इस डेटा से, व्हाट दे वांट टू अचीव. सो इंडिकेशन रहेगा कि वी वांट टू ग्रो और वी वांट टू इंक्रीज अवर प्रॉफिट्स, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट, और उसके रिलेटेड जो भी बिजनेस का डेटा है, these guys will submit to you, right? But analysis, question answers जो भी हमने यहाँ पे practice किया है, you need to follow on your own. Okay, ये समझ में आया सबको what is expected from you? Yes, sir. Okay, good. Yes. So once that is clear, then we touched upon few special use cases, मतलब special use case such as, okay, within this only we pivot chart का भी एक टॉपिक था छोटा, as in by using a pivot table you can create a chart as well, right? और directly data select करके भी आप chart use कर सकते हो. Okay, yes Sakshi. Okay, I'm just repeating what we are, like, revising all the topics.
what we discussed, okay, from day one. Okay, so pivot table, pivot chart. So pivot table का यूज करके हमने डिटेल्ड इंसाइट्स और डीप डाइव किया था विद इन द डेटा, राइट? मतलब हर एक ब्रांच का एनालिसिस, हर एक सेल्स पर्सन का एनालिसिस, राइट? एंड जस्ट टू कवर, वी स्टार्टेड विथ अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, quick insights, then consolidation, and now we are at a pivot table as in data summarization part. Okay, so based in the summarization, what we do, we deep dive into the data. हर एक कैटेगरी में क्या है, हर एक कॉलम में क्या है, राइट? हर एक ब्रांच का कितना कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल बिजनेस क्या है, ओके? ये सब कुछ अंदर डिटेल्ड एनालिसिस आप बोल सकते हैं इसको, यू कैन परफॉर्म यूजिंग पिवट टेबल, राइट? Then that pivot table you can use to create a pivot chart as well, or else insert chart, एक option है, directly आप chart insert कर सकते हो. If you are comfortable directly inserting the chart, well and good. नहीं है, automated chart चाहिए, तो you can use a pivot chart. Direct pivot table पे click कीजिए, you can open a chart. Okay, so these are the two options you have. Then special cases हमने उसके बाद शुरू किए थे, called what if analysis, right? In that we explored a scenario manager, अलग अलग scenarios क्या है, goal seek, solver, then data table, right? different use case, जो भी use case आपको चाहिए उस use case के basis पे आप ये special feature use कर सकते हो. Okay, such as you want to solve some equation, एक दो तीन values blank है, okay, you need to fill with appropriate value, तो सॉल्वर ऑप्शन है आपके लिए. आपको सिनारियो बेसिस पे कंपैरिजन करना है, तो सिनारियो मैनेजर इज देयर, राइट? So based on your special requirements or specific needs, you can use these options, right? Then after that we touched upon automation part. Okay, so कल हमने बैकग्राउंड देखा, what is VBA, VBA क्या होता है, right? Then how I can write a program in a VBA. Suppose मुझे कुछ automate करना है task, such as जो HR का analysis था, right? So I want to automate that task, क्योंकि ऐसे कई टास्क आप करोगे जो रिपीटेटिव इन नेचर रहेंगे, मतलब हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक बार आपको वो टास्क करके देना है, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर जॉब. ओके, ऐसा नहीं कि हर बार आप insights जनरेट करोगे और कुछ चार्ट प्रिपेयर करोगे. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टू क्लीन द डेटा, टू प्रिपेयर आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको जो भी स्टेप्स लगता है डेटा क्लीनिंग रिलेटेड, दैट यू नीड टू परफॉर्म, राइट? और एडॉक एनालिसिस, आपका मैनेजर आपको ये फाइल भेज देगा और बता देगा कि इसमें क्या मिसिंग है, मुझे बताओ क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, तो क्विकली आपको बताना है कि ये वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ है और ऐसा ऐसा ट्रेंड है. So all those quick you can do. So these are the ad hoc tasks. तो regular more frequent task के लिए आप macros use कर सकते हैं. Macros is one of the functionality which creates or which creates a program, VBA program, so that we can automate the task, right? मतलब एक टास्क ऑटोमेट करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट करता है मैक्रो. और ये हम एक्चुअली हमने कल देखा भी था लाइव, राइट? होप यू रिमेम्बर, आई हैव शोन यू कि वंस यू रिकॉर्ड द मैक्रो, एडिट करने से आप उसका प्रोग्राम देख सकते हैं. यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, मतलब डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज वी आर नॉट अ VBA डेवलपर, हम VBA डेवलपर नहीं है, बट हमें जितना रिक्वायर्ड है, इफ आई गेट टू नो दैट मच, तो ठीक है. मतलब बेसिक क्लियर है कि मैक्रोस का यूज करके हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर एवरीवन? So this is what the entire cycle looks like as a data analyst. Okay, so as the pro module is about like completed, so next part आता है project का. So I will quickly show you project report and everything.
Just a second. Already, right? This is what is shared with you. And in this एक project folder है, दिख रहा है सबको? Double click. There are two data sets, project dataset mini and used car. Then there is a project report. ये रिपोर्ट है. इस फॉर्म में आपको आपका काम प्रेजेंट करना है. यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, बट आई कैन शो इट इन द. ओके, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा. वेर यू नीड टू इंट्रोड्यूस कौन सा डेटा सेट है, उसमें क्या है. ओके, सो व्हाट एनालिसिस यू आर गोइंग टू डू, कि ये ऐसा ऐसा डेटा सेट है, वी कैन डू दिस 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 एनालिसिस. मैंने एक लिखा है फॉर मिनी स्टोर का जो है, उसके लिए ये इंट्रोडक्शन लिखा है, बट यू कैन इंट्रोड्यूस. क्लियर इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखना है, क्या क्या करोगे उसमें, क्या क्या है, आउटकम क्या होगा, आप जो भी एनालिसिस करोगे उसका आउटकम क्या है, यू कैन इंट्रोड्यूस. देन इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट. तो आपने जो भी डेटा सेट चूज किया होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. तो ये कॉलम के नाम है सारे. दीज आर कॉलम नेम्स. ओके, तो जितने भी कॉलम नेम्स होंगे उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आने चाहिए. आगे डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ये, बाय द वे. तो हर एक कॉलम का क्या मीनिंग है ये आपको लिखना है. मैंने यहाँ पे 4 लिख के दिए हैं सैंपल, 3 है एक्चुअली. सो डोंट कॉपी पेस्ट, मतलब 3 लिख के ही हो गया डेटा अंडरस्टैंडिंग, ऐसे नहीं. जितने भी कॉलम्स है वो सब कुछ लिखना है. 12 या 16 कॉलम्स है, सारे कॉलम्स के नाम और उस कॉलम में क्या है ये लिखना है. ओके, देन ये हो गया डेटा अंडरस्टैंडिंग. मैंने ऊपर हेडिंग दिया है, आपको चेंज करके नया हेडिंग देना है तो दे सकते हैं, यू कैन यूज दिस. देन नेक्स्ट डेटा प्रिपरेशन. इसमें आएगा डेटा फॉर्मेटिंग एंड डेटा कंसोलिडेशन. आप जो जो फॉर्मेटिंग करोगे यहाँ पे, मतलब आपको कुछ वी लुकअप करके डेटा कंबाइन करना है. आप मिनी स्टोर का डेटा सेट देखोगे यहाँ पे. ओके, तो दिस नीड्स अ वी लुकअप. मतलब यहाँ पे 3 कॉलम, 3 है, देखिए. ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, रिटर्न एंड पीपल दिख रहा है. ये तीनों का कंबाइन करके यू नीड टू क्रिएट अ फोर्थ शीट विच इज कंसोलिडेटेड. तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये बना के दिया है. ओके, इफ यू कांट, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, बट डोंट रेफर, ट्राई योरसेल्फ. ये तीनों शीट कंबाइन करके फोर्थ शीट क्रिएट करने के लिए ट्राई कीजिए. ओके, कंसोलिडेटेड. यहाँ पे एक्स लुकअप, वी लुकअप जो आपको यूज करना है दैट यू कैन रेफर. ये सारे स्टेप्स इसमें आएंगे. डेटा प्रिपरेशन में आपके पास 3 टेबल थे, तो आपने ऑब्जर्व किया देयर इज अ कॉमन कॉलम इन एक्स जो भी शीट्स है. सो वी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट द डेटा. देन वी यूज्ड अ वी लुकअप बेस्ड ऑन दिस कॉमन. इस फाइल में ये कॉमन है, इस फाइल में ये है, इस शीट में ये है, ऐसे. सो ऑल दोस डिटेल्स आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है. क्लियर. देन कार्स का डेटा कर रहे हो, वहां पे डुप्लीकेट्स है, तो आपको वो डुप्लीकेट हाईलाइट करके रिमूव करना है. तो वो सब कुछ यहाँ पे आना चाहिए. अभी ओके, यू नीड टू चेक नल वैल्यू चेक करना है, डुप्लीकेट वैल्यू चेक करना है. ओके, डेटा कंसोलिडेट नहीं है तो कंसोलिडेट करना है. एक फाइनल डेटा प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर आप आगे जाके एनालिसिस करोगे. ओके, क्लियर. ऑनलाइन क्लियर है क्या, क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगा डेटा प्रिपरेशन में? Yes, sir. Yes, sir. गुड. ओके, Yes, नेक्स्ट इज sir. द डेटा क्लीनिंग पार्ट. आपको ऐसे कई कॉलम दिखेंगे जो यूजफुल नहीं है, सच एज रो आईडी. रो आईडी इज वन ऑफ द कॉलम जो किसी जगह पे आप यूज नहीं करोगे, तो यू कैन मेंशन इट एज रिमूव रो आईडी विच इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, कुछ ऐसे कॉलम होंगे जो आपको रिमूव करने हैं, और ऐसे कॉलम होंगे जिसका फॉर्मेटिंग आपको करना है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, नहीं तो ऊपर मेंशन कीजिए. डुप्लीकेट से रिमूव करना है तो वो कर दीजिए. नल और ब्लैंक वैल्यूज है, तो ब्लैंक वैल्यूज आपको फिल करना है,
तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, फिल करने के लिए स्ट्रैटेजीज हम पाइथन में पढ़ेंगे। जब आप पाइथन सीखोगे, वी हैव अ डेटा क्लीनिंग स्ट्रैटेजीज, तो अलग अलग सिनारियो में अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको यूज करना पड़ता है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ। बट अभी के लिए आप नल वैल्यूज रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है क्या सबको, क्या Yes, लिखना sir. है? Yes, गुड, sir. Yes. चलो, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, गुड। चलो नेक्स्ट इज क्विक इनसाइट, कैसे निकालना है यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर, कस्टम फिल्टर, सॉर्ट वगैरह आपको यूज करना है। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट सेल्स क्या है, प्रोडक्ट कौन से ज्यादा हाईएस्ट शिपिंग कॉस्ट, हाई सेल्स, हाई प्रॉफिट, हाई शिपिंग कॉस्ट, मैक्सिमम डिस्काउंट, कौन सा एरिया, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 2, जो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, जो जो आपको दिख रहा है दैट यू नीड टू राइट इट डाउन। क्लियर क्विक इनसाइट्स में? ओके, देन नेक्स्ट इज अ डिटेल्ड इनसाइट, मतलब पिवट टेबल। ये देखिए मैंने यहाँ पे पिवट टेबल यूज किया है एंड चार्ट जो भी प्लॉट किया था वो लिखा है विद प्रॉपर एक्स एंड वाई एक्सिस, टाइटल चार्ट और कलर कोडिंग, राइट। देन यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, मतलब मैं ग्राफ देख के क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ। फ्रॉम हियर वी कैन से टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर बिजनेस, राइट। ये हमने ये पूरा चार्ट और ये देख के इंसाइट्स निकाला। एंड देन देयर इज अ एक्शन, as business is heavily relied on technology products, it is recommended to look for diversification। मतलब टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे ही हमारा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। सो ये हो गया एक्शन। सो लाइक दिस आपको एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 पिवट टेबल, चार्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्शंस ये लिखने हैं। ओके, तो ऐसा ये पूरा बड़ा रिपोर्ट बनेगा and then you can submit this report in a PDF format। okay, इसका PDF में कन्वर्ट कर दीजिए and you can submit the report only। मुझे एक्सेल शीट नहीं देखना है आपने क्या किया है, कौन से फॉर्मूला, कौन से सेल, कौन से शीट पे क्या किया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इनटू योर रिपोर्ट्स। ओके, सो आपका टास्क ये रहेगा, सो यू नीड टू राइट एवरीथिंग, और ये रिपोर्ट आपको 10 दिन में सबमिट करना है। यू कैन 10 days आर मोर देन सफिशिएंट, सो यू कैन टेक योर टाइम एंड सबमिट इट। ओके, आपको ये फॉर्मेट यूज करना है तो ये कर सकते हैं, नहीं है दूसरा करना है तो दूसरा कर सकते हैं, बट कीप एटलीस्ट जो हेडिंग वगैरह है, मतलब जो जो पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए आपके रिपोर्ट में, तो वो पॉइंट इंक्लूड कर दीजिए सिर्फ। ओके, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, अंडरस्टूड क्या प्रोजेक्ट है, कैसे करना है, रिपोर्ट क्या करना है, सबमिट कैसे करना है। एंड वंस Yes, योर sir. प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, यू नीड टू सेंड अ ईमेल और टू, मैं 2 ईमेल आईडीज आपके ग्रुप में मेंशन करूंगा। ओके, here only I will share it in the group as well through my personal ID as well as ऑफिस का जो ईमेल आईडी है। ये 2 ईमेल आईडी को आपको भेजना है। आई विल शेयर दिस, ये 2 ईमेल आईडी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपको, नॉट एन इशू, इफ यू वांट आई एम शेयरिंग इट इन द चैट एज वेल। ओके, क्लियर है, समझ रहा है सबको व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कंप्लीट एंड मोस्टली सारे स्टेप्स आपको अवेलेबल होंगे, मतलब जो हमने क्लास में सीखा है। वी हैव टेकन डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट और उस डेटा सेट पे हमने सीखा है ये, राइट। सो यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन द कंप्लीट डेटा सेट, इस डेटा सेट पे आपको करना है। आपको ये दोनों डेटा सेट नहीं चाहिए, बहुत बार आपने देखा है टू बोरिंग, देन रेफर सम साइट। हाँ, प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ नया करना है, कैगल इज वन ऑफ द साइट।
ओके, कैगल आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा सेट्स अवेलेबल है. ओके, लेट मी शो यू. ये देखिए, कैगल में ऑलरेडी डेटा सेट्स अवेलेबल है यहाँ पे, राइट. आई हैव टू क्लिक ऑन हियर. ये देखिए, दिख रहा है डेटा सेट्स. यहाँ पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट अ डिफरेंट ऑप्शंस. इसमें से जो चाहिए वो डेटा सेट लीजिए एंड आप परफॉर्म कर सकते हैं. नहीं चाहिए आपको और कुछ करना है तो data.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा डेटा सेट मिलेगा. आपके डिस्ट्रिक्ट का, गवर्नमेंट के कौन से भी मिनिस्ट्री का डेटा ले लो आप. इकोनॉमी, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, साइंस, सब कुछ यहाँ पे है. स्टेट वाइज है. एनालिटिक्स, आपको जो चाहिए वो डेटा सेट यहाँ पे मिलेगा. सिंपली डाउनलोड द डेटा एंड स्टार्ट वर्किंग. ओके, क्लियर. विजुअलाइजेशन चाहिए, ग्राफ रिलेटेड कुछ आइडियाज चाहिए तो विजुअलाइजेशन भी यहाँ पे एक्चुअली अवेलेबल है. यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है. ओके, हेल्थ केयर और वाटर सैनिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, रेड क्रॉस. ये देखिए नीचे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है. प्लीज डू एक्सप्लोर. ये देखिए प्रीव्यू है, डाउनलोड है, यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. ओके, प्रीव्यू है तो प्रीव्यू चेक कीजिए. स्टेट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है. जूनियर रेड क्रॉस ग्रुप फॉर बॉयज इन पंजाब. सो आपको ऐसा कुछ नया करना है हटके, इफ इट इज टू कॉमन देन यू कैन रेफर दिस साइट. दिस इज वेरी यूजफुल. ओके, क्लियर एवरीवन. ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड. सो होप यू गाइज हैव लर्नड अ लॉट. मतलब कुछ नया सीखा होगा. जो भी हमारे 8-10 लेक्चर हो गए, राइट. सो जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग एवरीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट इज योर फीडबैक. आपको क्या लगता है, व्हाट वी कैन इम्प्रूव, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, क्या क्या हम कर सकते हैं सो दैट आगे जो भी बैच आएंगे दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन. इन लैंग्वेज, इंटरनेट कनेक्शन, लेक्चर का टाइमिंग. इंटरनेट कनेक्शन बोलते ही इट सेज यू लॉस्ट योर कनेक्शन. ओके, यस. तो क्विकली कैन वी हैव 2 minutes or 5 minutes for the feedback? ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ यू कैन स्टार्ट. मतलब ओके, होमवर्क के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा डेटा से ओके. दूसरा जैसे नोट्स चाहिए इम्पोर्टेंट. ओके, अनफॉर्चुनेटली कंपनी में ऐसा आईएमपी नोट्स नहीं चलता, स्टार मार्क. लेकिन अगर वो चाहेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन अगर वो थ्योरेटिकल पूछेंगे तो क्या होता है. थेरट मोस्टली नोबडी विल आस्क यू थ्योरी एनालिसिस एंड ऐसा आपको कोई नहीं पूछेगा कि पिवट टेबल का डेफिनेशन बताओ, राइट. नोबडी विल आस्क. ये डेटा सेट है करके. बाय द वे, एक्सेल के बारे में वन मोर थिंग. इंटरव्यू में हार्डली आपको कहीं ऐसे फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, नहीं तो वो डेटा सेट भेजेंगे, करके दिखाओ, स्क्रीन प्रेजेंट करो, करके दिखाओ. दैट इज आई गेस अभी थोड़ा कॉमन हुआ है. कैमरा ऑन करने के लिए बोलेंगे, माइक ऑन करने के लिए बोलेंगे, एक्सेल ओपन करके दिखाओ कर, ये क्वेश्चन है. नहीं, दे विल सेंड यू अ डेटा सेट. एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट भेजेंगे आपको, बोलेंगे कि सबमिट इन 1 day. आज आपको डेटा सेट एज अ होमवर्क देंगे, प्लीज सबमिट द एनालिसिस ऑन दिस. कुछ उसके बारे में नहीं बताएंगे. तो एक दिन में आपको सब कुछ एनालिसिस करना है, सब कुछ करना है एंड सबमिट करना है. यू कैन यूज एनीथिंग, बट एटलीस्ट वो पता तो होना चाहिए कि कैसे यूज करना है. मतलब तुम्हाला हे माहित तरी पाहिजे. देयर इज समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल, समथिंग कॉल्ड सिनारिओ मॅनेजर, गोल सीक, राइट. तर हे माहितच नसेल तर चॅट जीपीटीला सांगणार काय तुम्ही, डू द एनालिसिस फॉर मी. त्यामुळे आई विल ट्राय. कुछ थियरी नोट्स वगैरह है तो, बट इट्स बिट डिफिकल्ट. ओके,
taken. We'll see. If possible, I will definitely share. Okay, online आपको टाइप करना है तो you can type in the chat. हम्म आपको टाइप करना है तो चैट में टाइप कर सकते हैं आपके फीडबैक्स, कमेंट्स. Yes. By the way, how many of you were here? कितने लोगों ने ऑफलाइन में अटेंड किया है और कितने लोगों ने कंप्लीटली ऑनलाइन है? दे नेवर विजिटेड ऑफिस. हाँ, है क्या कोई? हम्म ओके. ओह, सो मोस्टली सब लोगों ने विजिट किया ऑफिस. नहीं तो ऐसा होगा कि कभी देखा ही नहीं आपको, है ना? शुड नॉट हैपन लाइक दिस. लेट मी शो माय फेस इफ यू वांट. ठीक है, चलो क्विकली. कुछ है नहीं है? बुरा था, बहुत बुरा था. हाँ, मुझे पता ही था सब कुछ. यस, मुझे पता ही था सब कुछ, इतने इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ. यस. और कुछ क्वेश्चंस, आंसर, डाउट, क्लैरिफिकेशन? ओके, नथिंग. सभी में ऐसा होगा. हम्म Is the they will ask you theoretically for SQL or Power BI. नहीं, एसक्यूएल में थोड़ा बैकग्राउंड लगता है आपको. देयर इज समथिंग. मोस्टली थ्योरी नहीं आए तो चलता है, प्रैक्टिकल तो आना ही चाहिए, क्वेरी लिखना ही चाहिए. ऐसा थ्योरी भी रहता है बट थ्योरी के बैकग्राउंड होता है हर एक चीज का. एसक्यूएल में कई कंडीशंस में आपको एक क्वेश्चन है, व्हाई कैन यू यूज हैविंग क्लॉज के साथ आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं क्या नहीं. ही विल आस्क व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी. थ्योरी है ये, बट आप जब तक वो क्वेरी नहीं लिखोगे तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रट्टा मार के कोई फायदा ही नहीं है उसमें. हाँ, तो जो जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते थ्योरी को कुछ मतलब नहीं है. ये थोड़ी आपको थ्योरी एग्जाम में 40 मार्क मिल गया तो अंदर आओ. जब तक जो आप क्वेरी नहीं लिखते तब तक देयर इज नो नथिंग, नो पॉइंट. सिर्फ थ्योरी आके तो डेफिनेटली कोई नहीं लेगा, ट्रस्ट में. ऐसा है, थ्योरी नहीं आएगा तो भी चलेगा बट प्रैक्टिकल जो वो क्वेश्चन पूछा है वो तो आना ही चाहिए. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? नहीं आपको यहाँ पे आंसर करना है तो पुट इट इन द ग्रुप. ओके, इज इट ओके? ऑनलाइन ग्रुप में रिप्लाई कर दीजिए. ऐसा नहीं कि ओके इट वाज वेरी गुड, एक्सलेंट, आई लर्नड अ लॉट, थैंक यू. ऐसा नहीं चाहिए. डोंट टेक मी इन द रॉन्ग डायरेक्शन. आपको जेन्युइनली एक्सप्रेस कीजिए व्हाट डू यू फील, व्हाट डिड यू फील अबाउट द क्लास और द कोर्स. जो भी 8 दिन का आपका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में लिखिए. ऐसा नहीं कि एक्सलेंट, वेरी गुड, दो दो तीन तीन वर्ड्स में नहीं लिखना है. ओके, बाय द वे इंटरव्यू में आपको बात करना ही है, देयर इज नो एस्केप. खुद का आपको एक्सप्रेस करना ही है, राइट? कल जाके कंपनी में ऐसे मीटिंग शुरू है, 3-4 लोग बैठे और सामने एक प्रॉब्लम डिस्कशन हो रहा है, तभी तब आपको बात करना ही पड़ेगा ना. तब आप क्या बोलोगे? एक्सलेंट प्रॉब्लम, ऐसा क्या? गुड, आई नो दिस इज द अप्रोच, ऐसा 1-2 लाइन में. तब आपको बात करना ही पड़ेगा ना. तब आप मराठी हिंदी में डेफिनेटली, आई डोंट थिंक सो ऐसा चलता है. सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल. इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा और आपको क्या लगता है उस प्रॉब्लम के बारे में वो बात करना पड़ेगा, राइट? सो खुद का एक थॉट प्रोसेस बनाइए. व्यूज इसको बोलते हैं, व्यू. आपको क्या लगता है? आपको सेम लगता है, ठीक है, वो लिखिए. फिर आई फील दिस 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 विच इज सेम. ओके, बट लिखिए क्या मुझे लगता है, राइट? सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपका खुद का जो भी व्यू है वो आगे रखिए. बीट अ गुड, बीट अ बैड. ऐसा नहीं सब कोई भी आपको बोले यार नहीं यार तू हमेशा अच्छा ही बोल. नॉट नेसेसरीली, आपको जो लगे वो आप बात कर सकते हैं, बट बी पोलाइट, क्योंकि आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में है, घर में नहीं है, राइट? सो थोड़ा प्रोफेशनली आप
आपका पॉइंट कन्वे करना है, क्योंकि कल मान लीजिए टीममेट से आपसे झगड़ा हुआ तो आप क्या बोलने वाले हो? डायरेक्टली मारना है, बाहर जाके मिल, ऐसे है? डेफिनेटली नॉट। आपको प्रोफेशनली कन्फ्रंट करना है ना, कुछ भी हो जाए। सो ट्राई टू प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आपका जो भी ओवरऑल पर्सनालिटी है, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और वही एक्चुअली कम्युनिकेशन का भी ऑब्जेक्टिव है, राइट? जो आपको कहना है वो आप एक्सप्रेस करना सीखिए विथ हेल्प ऑफ इंग्लिश। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है वो यूज करके आपको एक्सप्रेस करना है, नथिंग एल्स, राइट? ऑनलाइन समझ में आया सबको? साक्षी, रुचा, प्रणीत, प्रणाली, स्नेहा, अनिल, अमित, Yes, आकांक्षा? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. So please do mention your comments or your views in the group. Okay? चलेगा? सब लोग आप लिखोगे कुछ ना, वट एवर यू फील, ऐसा नहीं कि अच्छा ही लिखना है, डेफिनेटली नो। आपको जो लगता है वो आप लिखिए। ओके, गुड। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ आई हैव एनीथिंग, आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है, क्वेरी है, फोटो निकालिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपको कुछ बात करना है, इमीडिएटली सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलेगा? डोंट सिंपली राइट हाय। ओके, फिर मैं आपको फिर हेलो बोलूंगा, फिर आप मुझे बोलोगे हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम था, फिर मैं बोलूंगा क्या प्रॉब्लम था, फिर आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम है। सो कट द क्रैप। जो प्रॉब्लम है क्लियरली लिखिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाय हेलो बोलने से अरे क्या मैनर्स है, घर में सिखाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, प्रोफेशनल है, काम से बात कीजिए, बाकी इट डजंट मैटर, राइट? वी आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, सो कीप इट अ प्रोफेशनल। So stick to the point. Hi, hello, I have this problem, sharing the screenshot, please suggest. That's it, right? So थोड़ा भी आपको सीखना पड़ेगा what is the professional way of communication, और क्या चीजें आपको, मतलब everybody is busy with their life, तो सबका टाइम important है, so you need to be very careful. Okay, फॉर्मल इनफॉर्मल चैट्स कैन हैपन आफ्टरवर्ड्स, बट काम है तो काम के टाइम पे आप काम का बात कर सकते हो। क्विक, विद इन 1-2 लाइन डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, सेंड अ फोटो, गेट ओवर, राइट? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, गुड, Yes. गुड देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। होप टू सी यू फॉर पाइथन वंस अगेन। आपका जब पाइथन शुरू होगा दैट टाइम वी कैन स्टार्ट, या वी कैन मीट वंस अगेन। ओके, वहाँ पे बहुत लंबा क्लास चलता है, अराउंड एक 1.5 महीना तो लगता ही है। ओके, सो हर रोज वहाँ पे आपको मिलना है। गुड, चलो देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, प्लीज डू Thank you. सबमिट Thank you योर very much, sir. होमवर्क। Thank you very much. यस, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Sir, next tool is Power BI, right? You will get the details in the group. Okay, ग्रुप में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे सारे। So no.